طبقہ تابعین کے ائمہ طریقت کا تذکرہ۔ اب میں بعض تابعین کے تذکرے کو شامل کتاب کرتا ہوں تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو، کیونکہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے بالکل متصل اور قریب ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ تابعین کے ائمہ طریقت میں سے آفتاب امت، شمع دین و ملت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اہل تصوف کے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حیات ظاہری اور عہد مبارک پایا ہے، لیکن دو چیزوں نے دیدار جمال جہاں آرا سے آپ کو روکے رکھا تھا، ایک آپ کا غلبہ حال، دوسرا آپ کی والدہ کا حق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کرن میں ایک اویس نامی مرد خدا ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو ان کا قد چھوٹا، بال لمبے اور ان کے پہلو اور ہاتھ پر درہم کے برابر ایک نشان ہوگا، لیکن وہ برس کا نشان نہیں ہوگا۔ ایسا ہی نشان ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوگا۔ وہ ربیہ و مضر کی بکریوں کی تعداد کے برابر میری امت کی شفاعت کریں گے۔ جب تم ان سے ملو تو میرا سلام پہنچا کر کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اے نجد کے رہنے والوں کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو فرمایا، تم میں سے کوئی کرن کا رہنے والا شخص ہے؟ جب کرن کے لوگ آئے تو ان سے حضرت اویس کے بارے میں استفسار فرمایا۔ انہوں نے بتایا، وہ تو دیوانہ آدمی ہے، وہ نہ تو آبادی میں آتا ہے اور نہ کسی سے ملتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، حتیٰ کہ وہ غمی خوشی تک کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اٹھ کر چل دیے، یہاں تک کہ دونوں حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے۔ وہ نماز میں مصروف تھے۔ حضرت علی المرتضی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام عرض کیا۔ دونوں نے ان کی ہتھیلی اور پہلو پر نشان دیکھے اور حضور علیہ السلام کی بیان کردہ نشانیوں کو پہچان لیا تو دعا کے لیے خواستگار ہوئے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا سلام اور امت کے لیے دعا کی وصیت پہنچائی۔ کچھ دیر یہ دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے، پھر حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے بڑی تکلیف اور زحمت فرمائی، اب آپ جائیے، قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ صاف کرنے اور اسے بنانے کے لیے مشغول ہوں۔ ان دونوں امیروں کی ملاقات سے اہل کرن کو معلوم ہو گیا کہ بظاہر یہ دیوانہ آدمی کون ہے، چنانچہ وہ لوگ ان کی بہت عزت اور قدر و منزلت کرنے لگے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت اویس کرنی وہاں سے کوچ کر کے کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہیں صرف حضرت حرم بن حیان نے ایک مرتبہ دیکھا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں جہاد کے لیے نکلے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، یعنی پسندیدہ زندگی پائی اور شہادت کی موت سے ہمکنار ہوئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وحدت میں سلامتی ہے، اس لیے کہ جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر اور اندیشے سے بے پرواہ، ہر حال میں مخلوق سے کنارہ کش اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل پر شیطان کا تسلط ہے اور اس کے سینے میں نفس کا غلبہ ہے۔ حالانکہ جس وقت دنیا و آخرت کی فکر اور خلق کا اندیشہ اس کے دماغ میں موجود ہے، اس وقت تک وحدت و تنہائی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی خاص چیز سے راحت پانا اور اس کی فکر رکھنا ایک ہی چیز ہے۔ جسے خلوت اور تنہائی کی عادت ہوگی وہ اگرچہ مجلس میں بیٹھا ہو مگر اس کی وحدت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اور وہ شخص جو کسی اور کے خیال میں غرق ہو اگرچہ وہ خلوت میں ہو تو یہ خلوت اسے فارغ نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ انسانوں سے جدا ہونا محبت الہی نہیں ہے، لیکن جسے محبت الہی حاصل ہو جائے اس کے لیے انسانوں سے ملنا جلنا ضروری نہیں ہے، اور جسے انسانوں سے محبت ہے اس کے دل میں خدا کی دوستی کا گزر نہیں ہوتا، بلکہ اسے محبت الہی کی ہوا تک نہیں لگتی۔ اس لیے کہ وحدت صاف دل بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दह, क्या अल्लाह बंदे के लिए काफी नहीं? हजरत हरम बिन हयान रजी अल्लाह ताला अन्हु तबका ताबेईन के आइम्मा तरीकत में से मंबा सफा मादन वफा हजरत हरम बिन हयान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अकाबिर तरीकत में से हैं। आपको तरीकत व मारिफत में कमाल दस्तरस हासिल थी। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मजलिसों में रहे हैं। आपने जब हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने का इरादा किया तो करन पहुंचे, लेकिन वो वहां से कूच करके जा चुके थे। नाउम्मीद होकर वापस आ गए। फिर पता चला कि कूफा में हैं, तो कूफा पहुंचे, मगर तवील अरसा तक मुलाकात ना हो सकी। मायूस होकर बसरा जाने का इरादा किया तो अचानक फुरात के किनारे जुब्बा पहने वुजू करते मिल गए। देखते ही पहचान लिया। जब किनारा फुरात से बाहर आकर रीश मुबारक में कंघी की तो हजरत हरम बिन हयान आगे बढ़े और सलाम अर्ज किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, वा अलैकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। हजरत हरम बिन हयान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि आपने मुझे कैसे पहचाना? उन्होंने कहा, मेरी रूह ने तेरी रूह को पहचान लिया। कुछ अरसा क़याम के बाद उन्हें वापस कर दिया। हजरत हरम फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी अक्सर बातें हुई हैं। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बरिवायत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक सुनाई कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही समरा मिलता है जिसकी वो नीयत करे। जिसने खुदा और रसूल की तरफ हिजरत की तो उसकी हिजरत खुदा और रसूल ही की तरफ होगी, और जिसने दुनिया की तरफ हिजरत की उसे वही मिलेगा। अगर बीवी की ख्वाहिश की तो उससे निकाह कर लेगा। उसकी हिजरत उसके लिए है जिसकी वो नीयत करे। इसके बाद हजरत उवैस करनी ने मुझे नसीहत की कि तुम पर फर्ज है कि अपने दिल की निगहदाश्त करते रहो ताकि किसी गैर की फिक्र में मुब्तला ना हो जाओ। इस नसीहत के दो मानी हैं। एक ये कि दिल को रियाजत व मुजाहिदे के जरिए हक ताला की इताअत पर लगाए रखे। दूसरे ये कि खुद को दिल के ताबे कर दे। ये दोनों असूल कभी हैं। दिल को हक के ताबे करना इरादतमंदों का काम है ताकि ख्वाहिशात की कसरत और हवाए नफ्स की मोहब्बत से दिल महफूज रहे और तमाम नामुवाफिक खतरात और अंदेशे दिल से निकाल फेंके और उसकी दुरुस्तगी और हिफाजत की तदबीर में हमेशा मशगूल होकर हक ताला के निशान कुदरत पर नजर रखे ताकि दिल खुदा ताला की मोहब्बत की अमाजगाह बन जाए। और खुद को दिल के ताबे करना कामिलों का काम है, क्योंकि हक ताला उनके दिलों को नूरे जमाल से मुनव्वर करके तमाम असबाबो इलल से पाको साफ बनाकर मकाम बुलंद और दर्जाए रफिया पर फाइज कर देता है और उनके जिस्मों को खिल्लत कुर्ब से नवाजता है और अपने लताइफ और तजल्लियात की रोशनी से उन्हें मुनव्वर कर देता है और मुशाहिदा कुर्ब से सरफराज करता है। जिस वक्त कामिल की ऐसी हालत हो जाए उस वक्त उसे खुद को दिल के ताबे और उसके मुवाफिक कर देना चाहिए। गोया पहली सिफत के हजरात साहिबुल कुलूब, मालिकुल कुलूब और बाकी सिफत मगलूबुल कुलूब और फानी सिफत होते हैं। इस मसला की असल व हकीकत यानी दलील की हुज्जत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ये कि उनमें से तेरे मुखलिस बंदे। इसमें दो किरातें हैं, एक ये कि मुखलिसीन लाम के जेर से और दूसरी मुखलसीन यानी लाम के जबर से। मुखलिस इसमें फाइल है जो कि बाकी उस सिफत है और मुखलस इसमें मफूल है जो कि फानी उस सिफत है। इंशाअल्लाह किसी और मकाम पर इस मसला को फिर बयान करूंगा। वो हजरात जो फानी उस सिफत हैं वो ज्यादा जदीदुल कद्र हैं, इसलिए कि उन्होंने खुद को दिल के ताबे और उसके मुवाफिक बना रखा है और उनके दिल हक ताला के सुपुर्द हैं और उनमें हक ताला ही जलवागर है और वो उसी के मुशाहिदा में कायम है। लेकिन वो हजरात जो बाकी सिफत हैं वो दिल को बकोशिश अमरे हक के मुवाफिक बनाते हैं। इस मसला की बुनियाद होशो मस्ती और मुशाहिदा व मुजाहिदा पर है। वल्लाहु आलम। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु तबका ताबेईन के आम्मा तरीकत में से इमाम असर यगाना रोजगार हजरत अबू अली हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बाज़ उलमा उनकी कुनियत अबू मोहम्मद बताते हैं और बाज अबू सईद। अहले तरीकत के दरमियान आपकी बड़ी कदर मंजिलत है, इल्म सुलूक में आपके लतीफ इशारात हैं। एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक देहाती के सवाल पर फरमाया, सब्र दो तरह पर होता है, एक मुसीबत और बला पर सब्र करना और दूसरा उन पर सब्र करना जिनके ना करने का हुक्म हक ताला ने दिया है। जिन चीजों के पीछे चलने से हक ताला ने हमें मना किया है उन्हें ना करें। इस पर देहाती ने कहा, आप सरापा ज़ुहद हैं, मैंने आपसे बढ़कर किसी जाहिद को नहीं देखा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बंदा खुदा,
मेरा ज़ुहद मरगूब चीजों में है और मेरा सब्र इज़्तिरार और बेकरारी में है। देहाती ने कहा, इस इरशाद की वजाहत फरमाइए क्योंकि मेरा एतकाद मुतजलजिल हो गया है। आपने फरमाया बलाओं पर मेरा सब्र करना और उसकी मना करदा चीजों से किनारा बर बिनाए इतायत है, इसलिए कि आतिश दोज़ख के खौफ से है। इज़्तिराब व बेकरारी और दुनिया में जो मेरा ज़ुहद है वो आखिरत की नीयत से है और ये ऐन रग़बत है। खुशी और मुसर्रत का मूजिब तो ये है कि दुनिया में अपने नसीब पर कनात करे और उसी को हासिल करे ताकि उसका सब्र हक ताला के लिए हो, ना कि ये कि अपने जिस्म को आतिश दोज़ख से बचाने के लिए हो, और अपना ज़ुहद खालिस अल्लाह ताला के लिए हो, ना कि ये जन्नत में जाने की ख्वाहिश के लिए हो। ये सेहते इखलास की निशानियों अलामत है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बदों की सोहबत नेकों से बदगुमानी पैदा करती है। ये नसीहत बिल्कुल सही और दुरुस्त है और मौजूदा लोगों के हाल के ऐन मुताबिक है। मकबूलाने बारगाह के तमाम मुनकिरों पर सादिक है। आम बदजनी और इनकार की वजह यही है कि लोग नकली सूफियों की सोहबत इख्तियार करते हैं और जब उनसे खयानत, झूठ और गीबत वगैरह का सदूर होता है वो खेलकूद और बेहुदापन के शाइक होते हैं, लगवियात और ख्वाहिशात और शहवतों के दिलदादा होते हैं और हराम और मुश्तबा माल के जमा करने में हरीस होते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि तमाम सूफी ऐसे ही होते हैं और तमाम सूफियों का यही मजहब होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि सूफिया के तमाम अफाल इताअत इलाही में होते हैं और मोहब्बत इलाही से भरपूर उनकी जुबानों पर कलमाए हक होता है। उनके कुलूब मोहब्बत इलाही की जगह, उनके कान कलाम हक सुनने का मकाम और उनकी आंखें मुशाहिदा जमाल इलाही की जगह होती हैं। जो कोई खयानत का मुजरिम होता है उसका मुआखजा होगा कि जहां भर के बुजुर्गों और अकाबिर को एक सा क्यों समझा। जो बदों की सोहबत इख्तियार करता है वो दरअसल खुद उसी में ही बदी के जरासीम मौजूद होते हैं। अगरचे उसके दिल में नेको भलाई का मादा होता तो वो नेकों की सोहबत इख्तियार करता। इसलिए वही शख्स मुस्तहिक के मलामत है जो नालायक और नाअहलों की सोहबत इख्तियार करता है। एक वजह इनकार ये भी है कि जब सूफिया को अपनी ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ पाते हैं तो उनके मकामात बुलंद से इनकार करने लगते हैं या मुनकिरों के हमजुबा हो जाते हैं। अहले मारिफत और सूफिया कराम के इनकार करने वाले लोग मखलूक खुदा में शरीर तर और गायत दर्जा के जलील और कमीने होते हैं, क्योंकि सूफिया का तरीका जहां भर में बरगुजीदा है और उनकी बरकतों से दोनों जहान की मुरादें हासिल होती हैं। ये हजरात तमाम जहान में मुमताज हैं। इसी मानी में एक बुजुर्ग के शेर का तर्जुमा है, तुम मेरे नफ्स को हकीर न जानो, वो तुम्हारा महबूब है। हर शख्स को अपने ही हम जिनसों से मुराद हासिल होती है। हजरत सईद बिन अल मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु तबका ताबेईन के आइम्मा तरीकत में से रईसुल उलमा फकीहुल फुकहा हजरत सईद बिन अल मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु अजीमुल मर्तबत, रफीउल मंजिलत, हरदिल अजीज और सीरत व खजाइल में उम्दा तरीन थे। तफसीर, हदीस, फिका, लुगत, शेर, तौहीद, नात और इल्म हकाइक में आपका बड़ा मर्तबा है। वो जाहिर में होशियार और तबीयत में नेक सीरत है। ये खूबी तमाम मशाइख के नजदीक महमूद और मसबूद है। आप फरमाते हैं, ए मर्द मुसलमान, अपनी इस थोड़ी सी दुनिया पर जो तुझे दीन की सलामती के साथ हासिल हुई है इस पर कनाअत कर, जिस तरह आम लोग अपना दीन खोकर माल की ज्यादती पर खुश होते हैं। अगर फक्र में दीन की सलामती है तो ये उस तवंगरी से बेहतर है जिसमें गफलत भी हो और दीन भी जाता रहे। इसलिए कि सलामती और ईमान के साथ जब फकीर अपने दिल की तरफ ख्याल करता है तो माल दुनिया से उसे खाली पाता है और जो मुयस्सर आता है उसी पर कनात करता है। और जब तवंगर अपने दिल की तरफ ख्याल करता है तो हरदम माल की तमा और ज्यादती में फिक्रमंद पाता है और वो हुसूल दुनिया की खातिर हर तरफ हाथ पांव मारता है। लिहाजा महबूबान खुदा की हरान नजर हक ताला की रजा पर रहती है और गाफिलों की नजर हमेशा इस दुनिया पर रहती है जो गुरूर आफत से भरपूर, हसरत व नदामत, जिल्लत व मासियत से पुर है। गाफिलों पर जब कोई बला और मुसीबत नाजिल होती है तो वो कहते हैं कि शुक्र है हमारे जिस्म महफूज रहे, और जब महबूबान खुदा पर कोई आजमाइश आती है तो वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल महफूज रहे। इसकी वजह यह है कि जब जिस्म पर बला का नजूल हो और दिल में बका हो तो जिस्म पर नजूल बला से खुश होते हैं। अगर दिल में गफलत है, अगरचे जिस्म ऐशो इशरत में हो, तो ये मूजब जिल्लत है। दर हकीकत मकाम रिजा ये है कि कम दुनिया को ज्यादा और ज्यादा दुनिया को कम समझे, इसलिए कि इसकी कमी इसकी ज्यादती की मानद है।
حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے. کسی نے آ کر پوچھا مجھے ایسا حلال بتائیے جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، اور ایسا حرام بتائیے جس میں حلال کا شائبہ نہ ہو. تو آپ نے جواب دیا ذکر الہی ایسا حلال ہے جس میں کسی حرام کا شائبہ نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں ذرہ بر حلال نہیں. اس لیے ذکر اللہ میں نجات ہے اور ذکر غیر میں ہلاکت ہے. وباللہ التوفیق.